Canonical transformations. We know that Lagrange's equations are independent of the choice of the coordinate system. A transformation from one set of coordinates to another, keeping the system unchanged, is known as point transformation. The Lagrange's equations are therefore invariant under point transformation because on changing the coordinate system, Lagrange's equations remain unchanged. But one has no choice in the other half of the variables used, that is the velocities. For example, Lagrange's equations are time derivative of partial L by partial Qj dot minus partial L by partial Qj equal to 0. Replacing coordinate Qj with x and Qj dot with x dot gives time derivative of partial L by partial x dot minus partial L by partial x equal to 0. And if we replace Qj by R and Qj dot by R dot, we have time derivative of partial L by partial R dot minus partial L by partial R equal to 0. You can see that all of these three equations are similar. So we can say that by changing the coordinates, the Hamilton's equations are unchanged. So we can say that the Lagrange's equations are invariant under point transformation. However, when we use Hamilton's equations, the choice of variables is greater. And now we have generalized coordinates as well as the generalized momentum as variables. So one has a certain freedom also in the choice of momenta. That is, in Hamiltonian formulation, momenta are also independent variables like generalized coordinates. A transformation of coordinates and momenta that leaves Hamilton's equation unchanged is known as canonical transformation. The transformations of coordinates and momenta that leave Hamilton's equations unchanged are known as canonical transformations. पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम दोनों के दोनों हम चेंज करते हैं. लेकिन हैमिल्टन्स इक्वेशंस अगर चेंज नहीं होती तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है. As in Hamilton's formulation, the momenta are also independent variables on the same level as the generalized coordinates. Therefore, the transformation of coordinates must be widened to include the simultaneous transformation of independent coordinates and independent momenta, Qi, Pi, to a new set, say capital Qi, capital Pi. अब हम small Qi थ्रू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल Qi से और स्मॉल Pi को कैपिटल Pi से. Let Qi and Pi be the old position and momentum variables, whereas capital Qi and capital Pi are new position and momentum variables. Then canonical transformation can be defined as Pi, capital Pi is a function of small p1, p2 in small pi, which is p1, p up to pn, and small qi, yani q1, q2, qn, or time. Similarly, capital Qi is a function of small p, p1 to pn, and q to qn, and time. Since qi, pi, pit, and pi is a function of qi, pit. In a new variables are the functions of the old variables, where Pi and Qi are called new or canonical variables. Thus, new coordinates are defined not only in terms of old coordinates, but also in terms of old momenta. Cyclic coordinates and choice of coordinate system. By definition, Hamiltonian is given as a function of p1, p2, pn, q1, q2, qn time, yani momentum of
generalized momentum and generalized coordinate and t. H is a function of generalized momentum, generalized coordinate and time. Let us consider the case when Hamiltonian is not an explicit function of time and all the coordinates qi are cyclic. Under these conditions, we can write h is equal to function of p1, p2, pn. क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट साइकिल हैं तो इसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, टाइम को हम वैसे छोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं कि नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर सिर्फ ये p1 से pn तक बचते हैं. तो h इज ए फंक्शन ऑफ नाउ p1, p2 अप टू pn. Since Hamilton equation is minus partial h by partial qi is equal to pi dot, and if qi are cyclic, then partial h by partial qi must be equal to 0. क्योंकि h में साइक्लिक होने का मतलब है कि qi जो है वो h में मौजूद नहीं होगा, so इसकी वजह से उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, qi की वजह से डेरिवेटिव. It means that जब ये टर्म 0 है then pi dot becomes 0, और pi क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 है तो pi becomes constant. और I को 1 दे दें तो P1 is equal to constant, let this constant is alpha 1. Similarly, I की वैल्यू 2 के लिए P2 is constant, उसको हमने alpha 2 कह दिया, and so on. तो I की जगह n लेने तो Pn is equal to constant, this is equal to alpha n. So that we can write Hamiltonian as function of constants alpha 1, alpha 2, alpha n. Other Hamilton equation is qi dot is equal to partial h by partial pi, or this can be written as qi dot is equal to partial h, where h is a function of alpha 1, alpha 2 to alpha n by partial pi, or this partial derivative can be qi dot can be equal to omega I, and in partial h of alpha 1, alpha 2 by partial pi is को हमने ओमेगा आई की को ले लिया है, where omega I is a function of alpha 1, alpha 2, alpha n, so omega I are also constant. qi dot को हम लिख सकते हैं dqi by dt, and this is equal to omega I, और dt को इधर शिफ्ट कर दें तो dqi is equal to omega I dt. इसको दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रल dqi is equal to omega I इंटीग्रल dt, और इसमें से ये इंटीग्रल q और इंटीग्रल d और इंटीग्रल कैंसिल होंगे तो qi is equal to omega I, यहाँ d और इंटीग्रल कैंसिल हुए तो t, तो omega I t plus beta I is the constant of integration, which can be determined by applying the initial condition. This type of problem is only for academic interest because equation x, ये जो equation है, this equation gives the solution when all the coordinates are cyclic. But it rarely occurs in practice, where one finds that all the generalized coordinates are cyclic. कि रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत कम आपको कोई ऐसा चांस मिल सकता है कि तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक हो जाएं. कम से कम एक कोऑर्डिनेट मोस्टली होगा, अगर ज़्यादा नहीं है तो. इसलिए सब कोऑर्डिनेट्स के साइक्लिक होने के चांसेस नहीं है, तो फिर ये वाली इक्वेशन भी इतनी ज़्यादा हमारे काम की नहीं है. A given system may be described by more than one set of generalized coordinates. आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से और बहुत सारे सिस्टम है, तो कोई भी सिस्टम यूज किया जा सकता है. So to discuss motion of a particle in a plane, one may use as generalized coordinates either the Cartesian coordinates, q1 x हम ले सकते हैं, q2 y, और the polar coordinates q1 r ले सकते हैं, q2 को थीटा ले सकते हैं. Both choices are equally valid. दोनों में से कोई भी ली जा सकती है. But we have one or the other set may be more convenient for the problem under consideration. लेकिन इसमें से कौन सा हमारे select करेंगे?
For external force, neither x nor y is cyclic, while second set does contain a cyclic coordinate in the angle theta. कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के हवाले से बात करें तो फोर्स के रेफरेंस से ये एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी साइक्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लें, फोर्स को एक्सप्रेस करें, तो फिर कम से कम ये थीटा जो है ये साइक्लिक हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास सिर्फ फिर आर में आएगी, फोर्स की इक्वेशन सिर्फ आर में आएगी। तो फिर इस तरह से आपके पास इस केस में दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, जबकि इस केस में एक वेरिएबल आर रह जाएगा, एक वेरिएबल थीटा उसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम यानी एक सिर्फ आर वेरिएबल के ऊपर आपकी इक्वेशन डिपेंड करेगी। तो अब फिर ऐसा हम सिलेक्ट करेंगे सिस्टम जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो जाएं, ताकि कम वेरिएबल्स बचें और कम इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़े। नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स सो depends on the choice of generalized coordinates. Since normally generalized coordinates are not cyclic, we must derive a specific procedure for transforming from one set of variables to the other set that may be more suitable for this purpose. कि हम कम से कम उसको इस तरह से जो है सिस्टम को सेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट उसमें से साइक्लिक हो जाए, ताकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कम हो जाए। Now Hamilton's equations are qi dot is equal to partial h by partial pi, and pi dot is equal to minus partial h by partial qi. There exists some function k which is a function of capital Qi, capital Pi or t. ये capital Qi, capital Pi ये canonical variables हैं. In new variables या canonical variables such that the equations of motion for the coordinate Qi, Pi are in Hamiltonian form. इस इक्वेशन की जगह हम लिख रहे हैं कैपिटल Qi डॉट इक्वल टू पार्शियल k बाई पार्शियल Pi, यानी स्मॉल Qi की जगह कैपिटल Qi, ऐसे ही यहाँ स्मॉल Pi की जगह कैपिटल Pi और h की जगह k पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। और इसी तरह से इसमें स्मॉल Pi की जगह कैपिटल Pi पुट करें तो ये कैपिटल Pi डॉट, तो यहाँ h की जगह k और स्मॉल Qi की जगह कैपिटल Qi पुट करें तो इक्वेशन बनती है partial Pi dot is equal to minus partial k by partial Qi। तो ये दोनों इक्वेशंस इस ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज के साथ इस फॉर्म में आ जाती हैं। चूंकि इक्वेशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच सेट ऑफ इक्वेशंस xi is valid is said to be canonical. The function k plays here the role of Hamiltonian h in this new set of coordinates. By comparison between Hamiltonian formulation and a canonical transformation, we see that here are the variables small qi, small pi, and time. For canonical transformation, we have variables capital Qi, capital Pi, or time. And Hamilton's equations are Qi dot equal to partial h by Pi, and Pi dot is equal to minus partial h by Qi, which are transformed to capital Qi dot is equal to partial k by partial capital Pi, and capital Pi dot is equal to minus partial k by partial capital Qi. कि ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है कैनोनिकल, ये आफ्टर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गया। अब ये इक्वेशंस इसमें किस तरह से गई, इनके और इनके दरमियान क्या रिलेशन है, वो हम फाइंड आउट करने की अब कोशिश करेंगे। इक्वेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए हम हैमिल्टन प्रिंसिपल से हेल्प लेंगे। हैमिल्टन प्रिंसिपल जो ये होता है कि डेल्टा any variation in the action integral must be 0, so delta t1 to t2 L dt is equal to 0. And we also know that the Hamiltonian h is equal to summation I pi qi dot minus L, या h इनको h और l को आपस में इंटरचेंज कर दें तो
एच यहाँ आ जाएगा और एल, तो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच। एल की फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस जगह, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनते हैं, डेल्टा टी वन टू टी आई टी टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच डी टी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ जो एल था, एल की जगह हमने एच करके ये एल की वैल्यू बना के यहाँ पुट कर दिया एल की जगह पे यहाँ। In case of canonical transformation, the modified Hamilton's principle is of the form, अब यहाँ स्मॉल पी आई की जगह कैपिटल पी आई, स्मॉल क्यू आई की जगह कैपिटल क्यू आई और एच की जगह के रखने से हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी डेल्टा टी वन टू डी एल समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई टाइम का फंक्शन है ये, डी टी इज इक्वल टू 0। The general form of modified Hamilton principle has zero variations at the end points। ये वैल्यू जो है इसकी भी 0 आ रही है, उसकी वैल्यू भी 0 थी, यहाँ भी वैल्यू 0 आ रही है। But simultaneous validity of equations 1 and 2 does not mean that the integrands of the two integrals are equal। कि अब ये इस वैल्यू के ऊपर ऑपरेट हो रहा है इंटीग्रल, आंसर 0 है, ये इस वैल्यू के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इसका भी आंसर 0 है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो वैल्यू है जिस पे ये इंटीग्रल ऑपरेट हो रहा है, ये ब्रैकेट वाली टर्म और ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये भी सेम है, ये डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सच इंटीग्रैंड्स कंसीडर एन आर्बिट्रेरी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम such that the difference between the two integrals is equal to the total time derivative of f। इस फंक्शन का टोटल टाइम यानी डी एफ बाई डी टी इन दोनों के, यानी इसमें से ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें से ये वाली टर्म माइनस करें तो ये इक्वल हम ले रहे हैं डी एफ बाई डी टी के। द इंटीग्रल्स बिटवीन the two endpoints of such difference term is integral t1 to t2 df by dt dt। This will become f of, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, d इंटीग्रल से कैंसिल होगा तो f बचेगा विद लिमिट्स t1 to t2। इसको फिर हम लिख सकते हैं f of t2 minus f of t1। The variation of this integral is automatically becomes 0 for any function f since the variation vanishes at endpoints। So integral delta t1 to t2 df by dt will become 0 or integral t1 to t2 df is equal to 0 as variation at the endpoints becomes 0। Delta f t1 to t2 is equal to 0 और delta f of t2 minus delta f of t1 is equal to 0। ये स्टार्ट वाले पॉइंट पे एंड वाले पॉइंट पे जाके ये चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ subtracting equation 4 from equation number 1, we can have ये कि डेल्टा t1 to t2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच पी आई क्यू आई डी टी ये था, और ये माइनस कर रहे हैं माइनस डेल्टा t1 to t2 डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और अब आप जो है ना ये डेल्टा इंटीग्रल और डी टी ये कॉमन निकलता है दोनों टर्म में से, तो डेल्टा इंटीग्रल बाकी यहाँ समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच और फिर यहाँ से माइनस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0। Now comparing equation 2 and equation 7, अब हम जो इंटीग्रेंड्स हैं इन ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म और इक्वेशन 2 में जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये, अब हम इनको, यहाँ हमने बात की थी कि ये दोनों के इंटीग्रेंड्स इक्वल नहीं है तो उसके लिए हमने डिफरेंस टर्म एक ली थी
डी एफ बाई डी टी। तो अब डी एफ बाई डी टी को इन्वॉल्व किया है, तो अब इसको हम इसमें जो डिफरेंस टर्म है उसके इक्वल रख सकते हैं। तो फिर अब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि ये वाली टर्म अब वो इक्वल है, तो ये हमारे पास है इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस के। या इसको फिर हम ये डी एफ बाई डी टी को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, डी एफ बाई डी टी को, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। द फंक्शन एफ हियर इज नोन एज जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि इसकी वजह से अब हमने जो ओल्ड हैमिल्टन प्रिंसिपल था किलीकैट और जो मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल की इक्वेशन बनी थी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, उन दोनों को आपस में हमने कोरिलेट कर दिया है डी एफ बाई डी टी की वजह से। इसलिए इसको हम जनरेटिंग फंक्शन का, एफ ऐसा फंक्शन है जो ओल्ड वेरिएबल्स और न्यू वेरिएबल्स या कैनोनिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को जनरेट करता है। In order to affect the transformation between the two set of canonical variables, f must be a function of both in old variables qi pi and new variable capital Qi capital Pi. The generating function f can be written as a function of independent variables in one of the only four forms। के चार तरीके से हम इसको f को लिख सकते हैं, इसमें ओल्ड वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो और न्यू वेरिएबल भी और साथ टाइम भी। तो फिर हमारे पास ये बनता है f1 हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये Qi लिया, यहाँ से कैपिटल Qi लिया और साथ टाइम ले लिया। अब फिर सेकंड केस में f2, यहाँ से ये पहला Qi और इधर से अब ये दूसरा कैपिटल Pi ले लिया इसके साथ और साथ टाइम। अब पहले वाले इस Qi को हमने यूज कर लिया, अब f3 से आप इस पहले नंबर पे स्मॉल Pi को ले लें और इसके साथ ये कैपिटल Qi और फिर टाइम। और इस तरह से f4 के केस में हम स्मॉल Pi और इधर से ये कैपिटल Pi और साथ टाइम लेंगे, हमारे पास ये चार जनरेटिंग फंक्शन बनते हैं। फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन f1, यानी हम f को f1 के इक्वल ले रहे हैं, सो दैट इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज। तो यहाँ हमारे पास जो f था डी एफ बाई डी टी, तो वो f की जगह हमने f1 पुट कर दिया, विच इज फंक्शन ऑफ Qi कैपिटल Qi और टाइम। This equation is called the equation for canonical transformation। यानी ये वो इक्वेशन है जिसकी बेस पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, involving the generating function f1। Now we will try to solve this equation to find transformation equations for each generating function f1, f2, f3, बारी बारी सब के लिए हमने इक्वेशंस निकालनी है। इसके लिए हम f1 का टोटल टाइम डेरिवेटिव यानी df1 बाई dt लेंगे, df1 बाई dt। तो बारी बारी ये हर एक के लिहाज से, क्योंकि i की वैल्यू 1 से n तक वेरी करती हैं, तो पहले i की 1 रखेंगे तो q1 बनेगा। तो f1 का q1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और q1 का टाइम डेरिवेटिव, प्लस f1 का q2 के लिहाज से डेरिवेटिव और q2 का टाइम डेरिवेटिव, सो ऑन f1 का qn के लिहाज से डेरिवेटिव और qn का टाइम डेरिवेटिव। इस तरह से फिर ये कैपिटल Q, ये भी यहाँ भी i की 1 से n तक वेरी करेगा, तो f1 का कैपिटल Q1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और कैपिटल Q1 का टाइम डेरिवेटिव, फिर f1 का Q2 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और Q2 का टाइम डेरिवेटिव, सो ऑन f1 का Qn के लिहाज से Qn का टाइम डेरिवेटिव और फिर टाइम के लिहाज से पार्शियल f1 बाई पार्शियल t और t का टाइम डेरिवेटिव dt ओवर dt बनता है जो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ। अब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i पार्शियल f1 बाई पार्शियल Qi dQi बाई dt। यानी इसमें i रखेंगे को 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म बनती है, i को 2 रखेंगे ये सेकंड टर्म बनेगी, i को 3 n रखने से ये टर्म बनेगी। और ऐसे ही फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम समेशन i पार्शियल f1 बाई पार्शियल कैपिटल Qi इंटू कैपिटल Qi बाई डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव कैपिटल Qi, इसमें भी i को 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी
F2 रखने से ये टर्म और n रखने से ये टर्म और फिर प्लस लास्ट टर्म। इसमें ये डी क्यू आई बाई डी टी को हम क्यू आई डॉट लिख सकते हैं और डी कैपिटल क्यू आई बाई डी टी को कैपिटल क्यू आई डॉट लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब डी एफ वन बाई डी टी की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वैल्यू पुट कर दी, डी एफ वन बाई डी टी की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यू आई डॉट कैपिटल क्यू आई डॉट एंड द रिमेनिंग टर्म्स, यानी यहाँ ये स्मॉल क्यू आई डॉट के साथ समेशन आई पी आई लिखा हुआ है और यहाँ ये स्मॉल क्यू आई डॉट के साथ समेशन आई पार्शल एफ वन बाई पार्शल क्यू आई। तो समेशन दोनों साइड से छोड़ के यहाँ से पी आई और यहाँ से पार्शल एफ वन बाई पार्शल क्यू आई, इनको हमने इक्वल रख दिया है। इस तरह से फॉर ये कैपिटल क्यू आई डॉट यहाँ कैपिटल क्यू आई डॉट लेफ्ट साइड पे नहीं है इक्वल से इस तरफ, तो इसलिए इस साइड पे 0 आ रहा है और यहाँ से हमने ये समेशन को छोड़ के पी आई इसके साथ लिखा है और इधर ये टर्म है, इसमें भी समेशन को छोड़ के पार्शल एफ वन बाई पार्शल क्यू आई ये प्लस की टर्म है। तो ये प्लस की ये टर्म पी आई यहाँ से और प्लस पार्शल एफ वन बाई पार्शल कैपिटल क्यू आई इस टर्म से, क्योंकि ये भी क्यू आई डॉट है, यहाँ भी क्यू आई डॉट है। और यहाँ से फिर पी आई को इधर शिफ्ट किया तो पी आई इज इक्वल टू माइनस पार्शल एफ वन बाई पार्शल क्यू आई आ गया। और बाकी जो फिर टर्म बच रही हैं, यहाँ माइनस एच बच रहा है, राइट साइड पे माइनस के है और ये लास्ट टर्म पार्शल एफ वन बाई पार्शल टी, इनको हमने इक्वल रख लिया और यहाँ से के को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस वाला एच इधर आके प्लस हो गया। तो के इज इक्वल टू एच प्लस पार्शल एफ वन बाई पार्शल टी। तो ये तीन इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, दीज आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर द फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह से हम सेकंड जनरेटिंग फंक्शन के लिए सेम वे में करेंगे। F2, अब चूंकि हमने ये जो इक्वेशन 9 है हमारी, इसमें है डी एफ वन बाई डी टी, यानी F1 का टाइम डेरिवेटिव है जो यहाँ पुट करना है। ये हम फिर F2 को पहले F1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे डी एफ वन बाई डी टी निकाल के उस इक्वेशन नंबर 9 में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम F2 को F1 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि दोनों में F2 और F1 में अगर एक वेरिएबल डिफरेंट है जैसे लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी जी यू वाई एफ एक्स वाई माइनस यू एक्स या एफ एक्स वाई माइनस पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स इंटू एक्स। अब आप देख रहे हैं कि इसमें और इस फंक्शन में y वेरिएबल सेम है, इसमें x है उसमें u है, यानी x f का x वेरिएबल डिफरेंट है। तो इस f का x के लिहाज से ही पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है और फिर उस टर्म को x से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी जिस जो डिफरेंट वेरिएबल था उसके लिहाज से इस f का डेरिवेटिव है और उसको सामने रखते हैं। F2 है हमारे पास क्यू आई पी आई टी और F1 डिपेंड कर रहा है क्यू आई कैपिटल क्यू आई और टाइम पर माइनस। अब देखिए इसमें टी और स्मॉल क्यू आई ये सेम है, कैपिटल क्यू आई जो है वो डिफरेंट है, यहाँ कैपिटल पी है यहाँ कैपिटल क्यू आई है। तो F1 का कैपिटल क्यू आई के लिहाज से हम डेरिवेटिव पार्शियल F1 बाई का पार्शियल कैपिटल क्यू आई और उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके मुताबिक। समेशन का सिंबल हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्यू आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ये n तक वेरी करती है, इस वजह से समेशन का सिंबल यहाँ आया है। यानी इसमें x जो है उसकी जगह हमारे पास कैपिटल क्यू आई है और u जो हमारे पास होता है यू एक्स, ये पार्शियल F1 बाई पार्शियल x यानी पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई है। और फिर ये पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई, इसकी वैल्यू इक्वेशन 11 में माइनस पी आई की इक्वल है। ये पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई, ये माइनस को तो माइनस कैपिटल पी आई की इक्वल है, ये वैल्यू वहाँ पुट कर दें इसकी जगह पे, तो ये माइनस पी आई है, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास ये इक्वेशन बनी और इसमें से अब F1 की वैल्यू निकालें तो ये वाली टर्म
F2 के तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो F1 इज इक्वल टू F2 माइनस में PI कैपिटल QI। अब यहाँ से हम dF1/dt निकाल सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने F1 की जगह इस इक्वेशन में, तो ये F2 QI PI माइनस समेशन I PI QI, बाकी सारी टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ F1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें F1 का डेरिवेटिव अलहदा से आ जाएगा, यानी d/dt ऑफ F2 QI PIT और माइनस इसका डेरिवेटिव, तो ये प्रोडक्ट फार्मूले से होगा, समेशन I PI को छोड़ के QI का टाइम डेरिवेटिव QI डॉट बन गया, माइनस समेशन I, अब QI को छोड़ के PI का टाइम डेरिवेटिव, तो ये PI डॉट। अब ये समेशन PI QI डॉट ये माइनस की टर्म है और ये टर्म प्लस की है, सेम टर्म प्लस माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा समेशन PI QI डॉट माइनस H इक्वल टू माइनस के प्लस इसका जब डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से, तो ये भी F2 का QI के लिहाज से होगा और QI का टाइम डेरिवेटिव, यानी पार्शियल F2 बाई पार्शियल QI और QI का टाइम डेरिवेटिव। यहाँ भी समेशन साइन इस वजह से है कि I एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। फिर कैपिटल PI के लिहाज से डेरिवेटिव, तो पार्शियल F2 बाई पार्शियल कैपिटल PI और कैपिटल PI का टाइम डेरिवेटिव, फिर प्लस टाइम के लिहाज से पार्शियल F2 बाई पार्शियल T, और यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी, तो इसके साथ ये टर्म बच रही है माइनस समेशन I PI डॉट QI। अब हम दोनों साइड पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ स्मॉल QI डॉट के साथ टर्म है पार्शियल F2 बाई पार्शियल QI और यहाँ है स्मॉल PI, तो स्मॉल PI इज इक्वल टू पार्शियल F2 बाई पार्शियल QI। इस तरह से ये कैपिटल PI डॉट इस साइड पे नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू ये वाली टर्म पार्शियल F2 बाई पार्शियल कैपिटल PI और फिर ये PI डॉट के साथ ये टर्म है कैपिटल QI और ये माइनस की टर्म है, तो दिस टर्म माइनस ये QI इक्वल टू 0, और यहाँ से QI को इधर शिफ्ट कर दें तो QI इज इक्वल टू पार्शियल F2 बाई पार्शियल कैपिटल PI, और बाकी फिर ये माइनस H बच रहा है, यहाँ माइनस K बच रहा है, और फिर ये वाली टर्म पार्शियल F2 बाई पार्शियल T, ये टर्म बच रही हैं। तो इनको रीअरेंज कर लें, K उधर चला गया, K इधर, H इधर आ गया, तो K इज इक्वल टू H प्लस पार्शियल F2 बाई पार्शियल T। तो ये सेकंड जनरेटिंग फंक्शन के लिए 3 इक्वेशंस थी। अब थर्ड जनरेटिंग फंक्शन की बात करें, ये F3 है, इसको भी पहले उस तरह से F1 में हमें चेंज करना है, उसके लिए वही हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, जिसमें U पार्शियल G इज इक्वल टू F XY माइनस UX और U पार्शियल F बाई पार्शियल X के इक्वल है। अब इसमें F3 हमारे पास है PI QI T और F1 है स्मॉल QI कैपिटल QI और T। इसमें देखें ये T सेम है और कैपिटल QI दोनों में सेम है, और इधर ये स्मॉल QI ये डिफरेंट है, तो F1 का अब पार्शियल डेरिवेटिव स्मॉल QI से आएगा, स्मॉल QI से मल्टीप्लाई करेंगे। F1 का स्मॉल QI के लिहाज से डेरिवेटिव और QI से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर वही माइनस का साइन और फिर समेशन का साइन उसी वजह से है कि जो है वो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और फिर ये पार्शियल F1 बाई पार्शियल QI, ये इसके क्वेश्चन नंबर 10 में ये स्मॉल PI की इक्वल है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल PI के साथ, और फिर इस F1 को इधर ही रखते हुए ये उधर जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू ये F3 और प्लस ये टर्म समेशन I PI QI। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 यहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ ये F1 की जगह हमने पुट कर दिया ये F3 प्लस समेशन I PI QI। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ F3 प्लस यहाँ प्रोडक्ट फार्मूले से आएगा, PI का डेरिवेटिव लिया टाइम डेरिवेटिव PI डॉट QI, फिर PI को छोड़ के QI का टाइम डेरिवेटिव QI डॉट। अब ये टर्म PI QI डॉट समेशन, और इधर भी ये मौजूद है ये टर्म, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी दोनों सेम टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो अब इससे बचेगा माइनस H इज इक्वल टू दिस समेशन I PI कैपिटल QI डॉट माइनस K, और इसका डेरिवेटिव इसका बारी बारी P Q और T के लिहाज से डेरिवेटिव होगा PI QI TI,
पहले पी आई के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ गया, तो पार्शियल F3 बाई पार्शियल पी आई, और पी आई का टाइम डेरिवेटिव पी आई डॉट। फिर क्यू आई, कैपिटल क्यू आई के लिहाज से तो पार्शियल F3 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई, और कैपिटल क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव। फिर पार्शियल F3 बाई पार्शियल टी टाइम के लिहाज से जब लेंगे तो डी टी बाई डी टी आएगा, वो 1 होगा। यहाँ पे ये इसके साथ समेशन का सिंबल नहीं होगा, तो पार्शियल F3 बाई पार्शियल टी, और फिर ये टर्म हमारे पास आ गई ये वाली समेशन आई पी आई डॉट क्यू आई, वो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो चुकी हुई है। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। ये स्मॉल पी आई डॉट है, इसके साथ ये पार्शियल F3 बाई पार्शियल पी आई प्लस की टर्म है, और फिर ये स्मॉल पी आई डॉट ये है, तो यहाँ स्मॉल क्यू आई, तो प्लस ये यहाँ से ये पार्शियल F3 बाई पार्शियल पी आई, और यहाँ से स्मॉल क्यू आई, और क्यू आई को दूसरी साइड पे ले गए तो क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल F3 बाई पार्शियल पी आई। और इस तरह से ये अब कैपिटल क्यू आई डॉट है, इसके लिए ये हमारे पास कैपिटल पी आई है, और ये पार्शियल F3 बाई पार्शियल क्यू आई, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई भी इनमें से जिनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं कोई भी टर्म उधर नहीं थी, तो 0। तो यहाँ से कैपिटल पी आई, और यहाँ से पार्शियल F3 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई, तो यहाँ से पी आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस पार्शियल F3 बाई पार्शियल क्यू आई। ऐसे ही फिर माइनस एच इधर है, माइनस के और पार्शियल F3 बाई पार्शियल टी, तो इनको रीअरेंज किया तो के इज इक्वल टू एच प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल टी। तो ये तीन जो है थर्ड जेनेटिक फंक्शन के लिए इक्वेशन बन जाती हैं। इस तरह से फोर्थ की बात करें, F4 स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई और टी, इसमें हम जानते हैं कि F1 जो है ये स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई और टी पे डिपेंड करता है। इन दोनों को अगर आप देखें तो इसमें स्मॉल क्यू आई है, इसमें स्मॉल पी आई है, इसमें कैपिटल क्यू आई है, इसमें कैपिटल, यानी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट कर, कोई भी ऐसी नहीं है जो स्वाय टी के सेम हो। यानी अब इसमें दो वेरिएबल डिफरेंट हैं, जबकि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए हमें एक वेरिएबल का डिफरेंट होना दोनों फंक्शन में चाहिए, एक फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ दो वेरिएबल डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हम इस डायरेक्ट F4 को F1 में चेंज नहीं कर सकते जैसे हमने F2 या F3 को किया था। तो यहाँ फिर हमें इस केस में F4 को F1 में चेंज करने के लिए हमें डबल 2 मरतबा लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले हम F4 को F2 या F3 के साथ लिंक करेंगे, उसके बाद फिर उसको F1 के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ हमारी जो है ये पहले हम F4 को F2 के साथ कर रहे हैं, यानी F4 और F2 को केंद्र में देखें। ये अब एक ही वेरिएबल स्मॉल क्यू आई ये डिफरेंट है, बाकी कैपिटल पी आई और टाइम सेम है। तो अब इसमें जो डिफरेंट है वो स्मॉल क्यू आई है, तो जब हम माइनस करेंगे माइनस यू एक्स, तो अब इसमें u जो है वो यानी x जो है वो क्यू आई होगा, तो ये u पार्शियल f यानी इसका क्यू आई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और क्यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पार्शियल F2 बाई पार्शियल क्यू आई और क्यू आई से मल्टीप्लाई, और समेशन i की वजह से आ गया। अब ये F2 है, हमने F2 और F1 के दरमियान पीछे रिलेशन निकाला था, इक्वेशन गालिबन 13 लिखी हुई है यहाँ। तो इक्वेशन 13 में ये कि F2 इज इक्वल टू F1 माइनस समेशन पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई इंटू कैपिटल क्यू आई। तो ये रिलेशन हम वहां पुट कर देंगे F2 की जगह। यहाँ हमने F2 की जगह पे ये पुट कर दिया F1 माइनस समेशन आई पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई इंटू कैपिटल क्यू आई, अब माइनस ये वाली टर्म पार्शियल F2 बाई पार्शियल क्यू आई इंटू क्यू आई। अब इसमें अब ये पार्शियल कैपिटल F1 बाई पार्शियल कैपिटल क्यू आई जो है ये माइनस पी आई की इक्वल होता है, और ये पार्शियल F2 बाई पार्शियल स्मॉल क्यू आई ये स्मॉल पी आई की इक्वल है। तो इसकी जगह स्मॉल पी आई आ गया, और इस टर्म की जगह पार्शियल F1 बाई पार्शियल क्यू आई की जगह माइनस,
तो माइनस माइनस ये प्लस कैपिटल पी आई, इस टर्म की जगह ये कैपिटल पी आया जो इसने इसको प्लस का बना दिया, और ये पार्शियल F2 पे पार्शियल क्यू आई की जगह स्मॉल पी आई आ गया। तो इक्वेशन ये बन गई। इसमें से F1 को एक साइड पे कर दिया, बाकी टर्म एक तरफ इकट्ठे कर लें, तो F1 ये F4 ये टर्म भी उधर जाएगी, माइनस की ये टर्म, अब प्लस की ये वाली टर्म हमारे पास ये आ गया। अब ये फिर हम वही इक्वेशन नंबर 9 में F1 की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दी जब भी जो निकाल ली है F1 की। अब बारी बारी से आपका डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव आएगा, तो ये पी आई क्यू आई डॉट माइनस है, समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के, और फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ F4 माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ये प्रोडक्ट फार्मूले से, तो ये पी आई का टाइम डेरिवेटिव क्यू आई, फिर माइनस पी आई को छोड़ के क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव, फिर प्लस इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, तो अब इसमें ये समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट, और इधर भी ये समेशन पी आई क्यू आई डॉट, ये दोनों टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट, और ये समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट, ये माइनस की टर्म है ये प्लस की टर्म है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा यहाँ माइनस एच इक्वल टू यहाँ पे माइनस के, और इसका टाइम डेरिवेटिव ये बारी बारी F4 का पहले स्मॉल पी आई के लिहाज होगा, फिर स्मॉल पी आई के लिहाज से ये पार्शियल F4 बाई पार्शियल पी आई और स्मॉल पी आई का टाइम डेरिवेटिव, फिर प्लस पार्शियल F4 बाई पार्शियल कैपिटल पी आई और कैपिटल पी आई का टाइम डेरिवेटिव, फिर टाइम के लिहाज से पार्शियल F4 बाई पार्शियल टी, और फिर यहाँ से ये वाली टर्म माइनस आई पी आई डॉट क्यू आई, और ये लास्ट टर्म समेशन आई पी आई डॉट स्मॉल क्यू आई। अब यहाँ पर अगेन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ये स्मॉल पी आई डॉट यहाँ से ये पार्शियल F4 बाई पार्शियल स्मॉल पी आई, इस तरफ पे 0 है ये, और फिर इस लास्ट टर्म में स्मॉल क्यू आई, ये दोनों प्लस की टर्म्स थी, तो यहाँ से स्मॉल पी आई इसको उधर शिफ्ट करने से माइनस पार्शियल F4 बाई पार्शियल पी आई जाता है। इस तरह से कैपिटल पी आई डॉट के लिए ये प्लस की टर्म पार्शियल F4 बाई पार्शियल कैपिटल पी आई, और इधर ये माइनस की टर्म कैपिटल क्यू आई, इसमें इसको अरेंज करेंगे तो क्यू आई इज इक्वल टू पार्शियल F4 बाई पार्शियल कैपिटल पी आई आ जाएगा, और इस तरह से फिर बाकी माइनस एच माइनस के और ये पार्शियल F4 बाई पार्शियल टी ये बचेगा। So these equations, this and these equations give the set of transformation equation for F4, and that's all.